Children, today I am going to teach you conjunctions. It is chapter 19. Everyone open your book. Conjunctions are joining words. They are used to join words, groups of words, phrases and sentences. Examples: A. Ridhima bought a dress and a pair of shoes. B. Would you like to carry an umbrella or would you carry a raincoat? C. Dhruva cannot go out because the gate is locked. Here in bold color it is given and, or, because. So these words are called conjunctions. So children, you have to know that कंजक्शन वो शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ता है या फिर सेंटेंसेस को. लिसन वेरी केयरफुली चिल्ड्रन. कंजक्शन वो शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है. यहाँ पे देखिए ए, एग्जाम्पल ए, हेयर रिधिमा बॉट अ ड्रेस and a pair of shoes. So here and is joining two phrases, no? Ridhima bought a dress and a pair of shoes. लेकिन दोनों में एक ही क्वालिटी है, मीन्स ड्रेस और शूज़. ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ड्रेस और शूज़ एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए इनको एड से जोड़ा गया है, एंड से. नाउ बी, would you like to carry an umbrella or would you carry a raincoat? umbrella और raincoat दोनों क्या है? नाउन है, तो दोनों को जोड़ा गया है. यहाँ पे दो सेंटेंस हैं. would you like to carry an umbrella एक सेंटेंस, और would you carry a raincoat दूसरा सेंटेंस. इसको और से जोड़ा गया है. तो चिल्ड्रन, बहुत अच्छे से आपको ये समझना होगा कि जब भी दो शब्द या फिर दो फ्रेजेस या क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस को कोई भी वर्ड जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कंजक्शन. काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. हियर इट इज़ गिवन अ टेबल. काइंड्स ऑफ कंजक्शंस. फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सेकंड, कोरिलेटिव कंजक्शंस. थर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. So you have to learn, children, these kinds of conjunctions. First, coordinating conjunctions. Second, correlative conjunctions, and third, subordinating conjunctions. In coordinating conjunctions, you have to learn fanboys, FANBOYS. I have written with blue pen here on top. You can see, children. It is a short tips that you learn, then you will clearly understand which kind of conjunction come in coordinating conjunctions. So you have to learn fanboys, FANBOYS. Fanboys. If you will go in detail of this abbreviation, so you could understand, like F for, A for ant, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So that is called fanboys. Children, you must learn this. Coordinating conjunction means fanboys. Whenever you will see coordinating conjunction, so these words will come here. Now, what is coordinating conjunction? Coordinating conjunction हम देखते हैं क्या है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है कि जब कोई समान श्रेणी, मीन्स बिल्कुल जनरल जो होती है ना कैटेगरी, उसमें रखा जाता है. ये इनका इस्तेमाल हमेशा दो इक्वल कैटेगरी यानी इक्वल रैंक वर्ड्स यानी शब्दों का या फिर फ्रेजेस का. फ्रेजेस मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? शब्द समूह. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस? शब्द समूह. पूरा कंप्लीट वाक्य नहीं होगा, ये शब्दों का समूह होगा. क्लॉजेस यानी कोई भी सेंटेंस का पार्ट तथा सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है. यानी कोऑर्डिनेटिंग जो हमारा कंजक्शन है उसमें इक्वल कैटेगरी के वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों, क्लॉजेस हों या फिर सेंटेंसेस हों, उनका ही इस्तेमाल होता है. इसमें ये सारे समान फंक्शन करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है. यानी कि इक्वल जो फंक्शन हो, इक्वल काम करने वाले जो फंक्शन हो, मीन्स हमारे समान फंक्शन करने वाले शब्दों को
जोड़ते हैं। और कौन कौन से कंजक्शन इसमें यूज़ करेंगे चिल्ड्रेन? फैन बॉयज़, यू हैव टू लर्न FANBOYS. Now you will see here coordinating conjunctions. So first, for, and, nor, but, or, yet, and so. Now children, come on and see how we will use these kind of conjunction in sentences. Children, here see coordinating conjunctions of addition. Here given and, comma, both, and, as well as, no less than, not only but also are used as coordinating conjunctions of addition. So children, you have to learn this. These kind of conjunction always comes in coordinating conjunction of addition है ना। जब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, मीन्स एडिशन, जोड़ना आपको पता है। तो जब हम देखेंगे कि कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को कोई वर्ड जोड़ रहा है तो डैट इज़ कॉल्ड coordinating conjunction of addition. So here it is like and, both, and, no less than, as well as, not only but also. Now children, come on here, coordinating conjunction of contrast. Children, turn the page. It is given here, coordinating conjunctions of contrast means वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जो दो स्टेटमेंट के बीच अपोजिट या फिर कंट्रास्ट मीन्स विरोध या अंतर, अपोजिट और कंट्रास्ट के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स जब हम किसी दो अपोजिट सेंस को एक ही स्टेटमेंट या फिर एक ही सेंटेंस में जोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंट्रास्ट। यहाँ जो आएंगे आपके कंजक्शन that are those are but, still, yet, nevertheless, whereas, only. Children, जब भी हम दो विरोध मीन्स दो कंट्रास्ट वाले स्टेटमेंट को जोड़ेंगे तो इस तरह के कंजक्शन हमें मिलेंगे देखने को, जैसे but, still, yet, nevertheless, whereas, and only. नाउ कम ऑन चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ चॉइस। ये नाम से ही आपको पता चला, जैसे कि एडिशन पता चला था आपको, चॉइस क्या होगा चिल्ड्रन? यहाँ पे वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जो दो ऑल्टरनेटिव्स यानी दो ऑप्शन विकल्प के बीच चॉइस देने के लिए किए जाते हैं। मीन्स दो कोई भी स्टेटमेंट, फ्रेज या फिर वर्ड्स को चॉइस देने के लिए जोड़े जाते हैं, लाइक और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको चिल्ड्रन कि इस तरह के जो भी कंजक्शन होंगे वो कौन से होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ चॉइस। नाउ चिल्ड्रन, टर्न द पेज। हियर कम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग, सो, देयरफॉर, सो, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे वो किस में आएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीजनिंग। इसका मतलब है कि वे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष, कंक्लूजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। निष्कर्ष आपको पता है चिल्ड्रन, कंक्लूजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो उसमें जोड़ने के लिए हमें सो, देयरफॉर या फिर फॉर का इस्तेमाल करना होगा। That is called coordinating conjunction of reasoning. Children, now come on, correlative conjunctions. Here it is given second part, correlative conjunctions. Now come on, correlative conjunctions. Here it is given correlative conjunctions. Conjunctions used in pairs are called correlative conjunctions. Correlative conjunctions are used for joining either words or sentences. They appear as pairs and are used to link equivalent sentences. Children, correlative conjunction का यूज़ हम कब करते हैं ये ध्यान से देख लीजिए। एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ने के लिए।
एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ से जोड़ने के लिए, इसी तरह एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए। Like this, you can see here example given, so that the tsunami was so powerful that it destroyed the entire city। यहाँ पे so और that दोनों का यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों क्या है, फ्रेज है, दोनों को जोड़ा गया है। और दूसरा आइदर और का एग्जाम्पल देख लीजिए चिल्ड्रेन, आइदर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और यू लीव द जॉब। सो ये भी क्या है, दो फ्रेज हैं, तो इनको जोड़ने के लिए आइदर और का यूज़ किया गया है। तो जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे चिल्ड्रेन, उसमें को रिलेटिव कंजक्शन का यूज़ हुआ है, जो ज़्यादातर दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव या दो कॉम्प्लीमेंट्स या फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कंजक्शन दो बार यूज़ किए गए हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो को रिलेटिव कंजक्शन ही होते हैं। नाउ अब हम पोजीशन देखते हैं कि कोरिलेटिव की कहाँ होनी चाहिए। कोरिलेटिव का यूज़ करते समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसका पोजीशन का कहाँ हम उसको अप्लाई करें, मीन्स उसकी पोजीशन हम कहाँ रखें कोरिलेटिव कंजक्शंस की। इनके यूज़ के लिए हम देखेंगे कि एक पार्ट के साथ जिस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, मतलब हम देखते हैं कि एक स्पेशल टाइप का ये रूल है कि इनमें से एक भाग के साथ जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ होता है वही दूसरे भाग के साथ भी प्रयुक्त होना चाहिए। अगर एक का स्थान नाउन के पहले हो तो दूसरे का भी नाउन के पहले ही होना चाहिए, यानी दोनों जो हम देखेंगे चिल्ड्रन, हमारा जो कंजक्शन होगा कोरिलेटिव, उसमें देखेंगे कि अगर एक हम नाउन के पहले लगा रहे हैं तो दूसरा भी नाउन के पहले ही लगाएंगे, वर्ब एडजेक्टिव के पहले नहीं। यदि इस तरह का एक ही स्थान वर्ब के पहले होगा, यानी कि अगर मतलब हम एक कंजक्शन वर्ब के पहले लगा रहे हैं तो दूसरा भी वर्ब के ही पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, आइदर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और यू लीव द जॉब। दोनों क्या है, प्रोनाउन है यू और यू के पहले लगा है आइदर और यू के पहले लगा है और। इसी तरह आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे इन सारे कंजक्शन का यूज़ होता है। नो सूनर देन, ऑल दो, येट, सच, डैट, सच एज, सो डैट, विद और, सो एज। ये सारे जितने भी बोल्ड कलर में कंजक्शन दिख रहे हैं चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दिस कि इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए चिल्ड्रन कि आपको कब इस्तेमाल करना है। इसके बहुत से रूल्स होते हैं, आपकी बुक में इतने रूल्स नहीं दिए हुए हैं, ओनली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए आप भी एग्जाम्पल के अनुसार ही समझ लेंगे। अदरवाइज़ थोड़े बहुत रूल मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे एक मैंने अभी बताया कि फर्स्ट सेंटेंस में अगर कोई भी को रिलेटिव कंजक्शन नाउन के पहले आता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी जो हम को रिलेटिव कंजक्शन को जोड़ेंगे वो नाउन के पहले ही लगाएंगे। अगर यहाँ देखिए सेंटेंस में नाइदर का स्थान नाउन के पहले है, इसलिए इसके साथ जो भी हम जोड़ेंगे वो भी नाउन के पहले ही, और क्या जोड़ेंगे नाइदर के साथ, नॉर, वो भी नाउन के पहले ही लगाएंगे। अब देखिए शी नॉट ओनली गेव मी ब्रेड बट ऑल्सो मनी, यहाँ पे है नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ही वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रॉफी बट ऑल्सो अ कैश प्राइज। यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या है, वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद नाउन, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट फॉर्म ये होगा शी नॉट ओनली गेव मी ब्रेड बट ऑल्सो गेव मनी। तो आपका यहाँ पे देखिए आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ही वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रॉफी बट ऑल्सो अ कैश प्राइज, और ट्रॉफी नाउन और कैश प्राइज ऑल्सो नाउन, तो दोनों के पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह आइदर और, जैसे कि ऊपर भी मैंने अभी बताया, आइदर लिसन टू माई लेक्चर और लीव, लिसन क्या है, वर्ब, और लीव भी वर्ब। नाइदर नॉर, जॉन और जेनी, यानी जॉन और जेनी दोनों नाउन है, उनके पहले नाइदर और नॉर। सच डैट, सच वॉज द कंडीशन ऑफ द हाउस डैट रेन वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ। यहाँ पे क्या है, सच और डैट का इस्तेमाल हुआ है चिल्ड्रेन
आप बहुत ही ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे कंजक्शन, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे कंजक्शन को अप्लाई करते हैं हमारे सेंटेंस में. Children, now you see first example, it is given so that. So that means या फिर such that का यूज़ रिजल्ट या कंक्लूजन शो करने के लिए किया जाता है. सो के बाद एडजेक्टिव तथा सच के बाद नाउन का यूज़ होता है. एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है. चिल्ड्रन, नाउ लाइक दिस, आइदर और. सो आइदर और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि अगर कोई भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों तो वर्ब का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है. जैसे आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन इट. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आइदर यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो और यू लीव द जॉब. इसमें ऑप्शन भी होता है. जब भी ऑप्शन वाले या चॉइसेस वाले कोई भी सेंटेंस होंगे तो आप इसमें आइदर और का इस्तेमाल करेंगे, ऑल्टरनेटिव जब दिए रहेंगे तो. नेक्स्ट, नो सूनर देन. इसमें क्या होगा चिल्ड्रन, दो, जब भी कोरिलेटिव कंजक्शन आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि दो कंजक्शन मिल के बनते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन. नो सूनर देन मीन्स ज्यों ही या त्यों का ही सेंस देता है. मीन्स इसके साथ केवल देन का प्रयोग होता है. लाइक इसमें दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, देखिए, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द टीचर केम टू द क्लास. मीन्स जैसे ही बेल रिंग हुई वैसे ही टीचर क्लास में आ गई थी. दूसरा एक सेंटेंस देख लीजिए चिल्ड्रन. नो सूनर डिड ही सी मी देन ही फ्लेड अवे. नो सूनर डिड ही सी मी देन ही फ्लेड अवे. जी हाँ, उसने मुझे देखा वैसे ही वो भाग गया. लाइक दिस, ऑल्दो, yet. This also there are two conjunction. So how you will use, दो और although के बाद yet का यूज़ होता है. इसके साथ but का यूज़ कभी नहीं होगा. although या दो का मीनिंग है यद्यपि या हालांकि, और yet का मीनिंग है तथापि. मीन्स इसके साथ जो भी क्लॉज होंगे उसके अंत में लास्ट में कॉमा का यूज़ करने पर येट लगाना ही है, अगर दो या ऑल दो होंगे तो. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है चिल्ड्रन, ऑल दो शी इज़ वेरी फेमस, कॉमा देख रहे हैं आप, उसके बाद येट शी इज़ हम्बल. इसके लिए क्या होगा, मीन्स अगर हम देखेंगे कि हालांकि मीन्स बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई भी क्वालिटी है तो हम शुरू करेंगे अपना सेंटेंस हालांकि, और उसके साथ फिर भी. येट का मतलब फिर भी. मीन्स अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, इस तरह के जो भी वाक्य होंगे उसमें हम क्या जोड़ेंगे, दो और येट, या फिर ऑल दो येट. दोनों एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रन. ऑल दो शी इज़ नॉट वेल ऑफ येट शी हेल्प्स द नीडी. हालांकि उसका वो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी उसने लोगों की मदद की या करती है. तो इसी तरह पहला वाला भी, ऑल दो शी इज़ वेरी फेमस, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, येट शी इज़ हम्बल, फिर भी वो बहुत हम्बल है, दयालु है. लाइक दिस, कोरिलेटिव कंजक्शंस इंक्लूड एज, both, and, either or, neither nor, not only but also, such that, such as, so that, whether or, and so as. Children, here it is given both and. इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब एक ही इंसान की दो क्वालिटी बताना चाहेंगे या फिर एक ही सिचुएशन के दो फॉर्म, दो रूप बताना चाहेंगे तो हम बोथ एंड का इस्तेमाल करेंगे. दोनों कंजक्शन है. लाइक एग्जांपल, दिव्या इज़ बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर. दिव्या की दोनों क्वालिटी को हमको बताना है तो इसलिए हम दिव्या इज़ बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर ऐसे करेंगे इसका यूज़. नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे हम बोलते हैं चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे,
नो सॉरी, सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो की मीनिंग यहाँ पे निकलेगा सिर्फ इतना ही नहीं। यहाँ पे दिया हुआ ही वॉज गिवन नॉट ओनली अ ट्रॉफी बट ऑल्सो अ कैश प्राइज। उसे ट्रॉफी ही नहीं दी गई, इट मीन्स इतना ही नहीं दिया गया था, बल्कि कैश प्राइज भी मिला था। तो इसमें ऐसे बोलेंगे कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि, दो का सेंस निकलेगा। अगर इस तरह के वाक्य आपको दिखेंगे तो आप उसमें क्या लगाएंगे चिल्ड्रन? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट आइदर और, इसमें भी ऊपर ही बताया है मैंने, ऑप्शनल कुछ भी अगर ऑप्शन वाले सेंटेंस होंगे तो आप क्या करेंगे? आइदर और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो नाइदर और नॉर, ये दोनों लगाएंगे। सच डैट, ये कैसे करेंगे चिल्ड्रन आप? सच डैट, इसमें दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, सच वॉज द कंडीशन ऑफ द हाउस डैट रेन वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ। इसमें देख लेंगे आप कि सच या एस का प्रयोग नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन सच डैट का प्रयोग रिजल्ट या कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन या रिजल्ट शो करने के लिए किया जाता है। सो के बाद एडजेक्टिव तथा सच के बाद नाउन का यूज़ किया जाता है। मीन्स हम देखेंगे कि सो के बाद एडजेक्टिव और डैट के बाद सच के बाद नाउन का प्रयोग। सो डैट या सच डैट दोनों का मीन्स एक ही है, सच डैट या सो डैट दोनों का सेंस एक ही निकलता है चिल्ड्रन, डोंट बी कंफ्यूज। सो डैट या सच डैट दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि रिजल्ट या कंक्लूजन दिखाने के लिए वाक्य में हम सो डैट या सच डैट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह चिल्ड्रन हियर गिवन सच एज, अभी मैंने बताया था ऊपर, सच एज का यूज़ नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। एस के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने का काम मीन्स एंटीसेडेंट का काम करता है, यानी कि सच एस जब भी हम देखेंगे तो नाउन को मॉडिफाई करता है। सो एज या फिर एज, ये देखिए, सो एज द बुक इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग एज यू थिंक इट इज़, मतलब जैसा तुमने सोचा। एज ही इज़ एज बिजी एज अ बी, ये हम सिमली में भी देख चुकेंगे, जब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे तो सिमली आएगी उसमें चैप्टर, उसमें ये दिया रहेगा ही इज़ एज बिजी एज अ बी। तो यहाँ एज क्या किया है? कंपेयर किया है। नाउ स्कार्सली या हार्डली व्हेन, हार्डली मीन्स होता है बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। हार्डली का यूज़ कब करेंगे हम? व्हेन बिफोर हार्डली या फिर हार्डली व्हेन बिफोर का यूज़ होता है। जैसे कि मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी आ गई। सो हेयर यू कैन से स्कार्सली या हार्डली, दोनों मीनिंग एक ही है। हैड आई रीच द स्टेशन, व्हेन या फिर बिफोर, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। द ट्रेन स्टार्टेड। Scarcely had I paid the money when a pickpocket snatched my purse. यहाँ पे भी देखिए मीनिंग यही निकलेगी कि जैसे ही मैंने पैसे पेड किए वैसे ही पॉकेट मार ने मेरा पर्स छीन लिया था। He had hardly got up from bed when the guest arrived. जैसे ही सोकर उठा था मेहमान घर पे आज पहुंच चुके थे। लाइक दिस यू कैन डू चिल्ड्रन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑल्सो। चिल्ड्रन नाउ सी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस अ कंजक्शन यूज्ड टू कनेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और टू स्टेटमेंट, one of which is dependent on the other is called a subordinating conjunctions. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं या क्लॉज वो होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, यानी कि अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्लॉज समझना है कि क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज
दो टाइप्स हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, मीन्स अगर हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और अपने मीनिंग के लिए वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, यानी अपने जो सेंटेंस जो भी मीनिंग कहना चाह रहा है वो अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है अपनी मीनिंग, उसे दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो ऐसे सेंटेंस जो अपने मीनिंग को बताने के लिए दूसरे मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रेन, हियर गिवन एग्जांपल, आफ्टर शी लर्न टू ड्राइव समिति फेल्ट मोर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंक्लूड after, although, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where and whether। ये जितने भी बोल्ड कलर के लिखे हुए कंजक्शन हैं ये सारे कौन से कंजक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे सबसे पहला डैट। कब लगाएंगे डैट? ही सेड डैट ही वॉज गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप। हम देखते हैं कि इसमें डैट का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये दूसरे क्लॉज को जोड़ना चाह रहा है क्योंकि इसे अपनी बात पूरी करनी है, इसलिए ये डैट का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और डैट लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है जिससे कि पूरी बात समझ में आ गई है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह दो इक्वल रैंक के वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर क्लॉजेज या फिर सेंटेंसेस को नहीं जोड़ते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के काम आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पहले अभी हमने पढ़ा है कि किसी से कंपेयर करना या फिर दो क्लॉज को जोड़ना या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो वर्ड्स को, तो उसमें सिर्फ जोड़ने का काम है, लेकिन ये इसमें एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, मीन्स इनकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी जब तक कि ये हम कंजक्शन ना जोड़ें, इसलिए इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है, मैनर्स। मैनर्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग एडवर्ब क्लॉजेस मैनर्स। तो हम देखते हैं कि मैनर्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर किसी की विधि या टेक्निक या रीति या फिर तरीका, मेथड बताना हो तो हम एज फार एज, सो एज इफ, अकॉर्डिंग टू, एज, एक्सेट्रा जैसे कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर place it is given second one, so you will see how you will use। ये नाम से ही पता चल रहा है कि place हमें स्थान बताता है, मीन्स कोई लोकेशन बताता है। ऐसे कंजक्शन के लिए हम where या फिर wherever का ये इस्तेमाल करते हैं। चिल्ड्रन टर्न द पेज, here पेज नंबर 154, it is given like this all the example again come on। reason of cause, reason और cause, किसी भी कारण को बताने के लिए हम किस तरह के कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो देखना है यहाँ पे कि कौन सा रीज़न या फिर कॉज है, कारण है, ये कारण बताता है। और ऐसे कंजक्शन बिकॉज, सिंस, एज, एक्सेट्रा वाले होते हैं। नाम से पता चल रहा है कि किसी का रीज़न या फिर कॉज मीन्स कारण को बताने के लिए हम किस तरह के कंजक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज, एज, सिंस। और नेक्स्ट है रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट। अगर हमें किसी का रिज़ल्ट बताना हो या उसका क्या प्रभाव पड़ा तो हम उसके लिए सो डैट, सच डैट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पर्पस, अगर हमें किसी चीज़ का पर्पस मीन्स उद्देश्य है, पर्पस मीन्स उद्देश्य होता है, इसलिए नाम से पता चला है कि अगर हमें उद्देश्य बतलाना है या फिर एक्सप्रेस करना है तो ऐसे कंजक्शन के लिए डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, लेस्ट, एक्सेट्रा जैसे कंजक्शन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट कम ऑन हेयर कंसेशन और कंट्रास्ट। यहाँ पे कंसेशन या कंट्रास्ट दो लोगों की तुलना में जब हम बात करेंगे तो फिर कौन सा होगा कंजक्शन हमारा ऑल्दो, दो, ऑल्दो, इवन, इफ। ये भी अभी ऊपर भी आपको बताया गया था, लेकिन ऊपर जो ऑल्दो और दो में हम लोगों ने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजक्शन में, उसमें दो कंजक्शन थे और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंजक्शन होगा। ये विरोध बतलाता है, अपोजिट भी बतलाता है। ऐसे कंजक्शंस दो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन इफ, नॉट विथस्टैंडिंग, डैट एक्सेट्रा जैसे होते हैं। मीन्स यहाँ पे हम विरोध भी देखते हैं कि आपस में अपोजिट दिखाने के लिए या फिर कंट्रास्ट बताने के लिए इस तरह के कंजक्शन यूज़ में लाए जाते हैं। कंपैरिजन जैसे कि सिमलीज चैप्टर में भी आता है कि अगर हमें किसी एक से दूसरे की तुलना करनी हो तो इसके लिए हम एज या एज ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, किसी से किसी की तुलना करके दो बार एज लगाएंगे तो वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। नाउ चिल्ड्रन, आई विल सेंड आंसर की ऑल्सो and you will try to do all the exercises.